Welcome back, students. We are reading O Great Poet by Daya Pawar, and we have just about finished reading about the author as well as a little background of the poem. We know that Daya Pawar himself is a Dalit poet, a critique, as well as a novelist, and he has written a very famous novel Baluta, which is autobiographical in nature, and in this he speaks of the atrocities suffered by Dalits which shook the Marathi society, and this only encouraged the responses that he got to this poem, this novel, this work of literature, encouraged him to write in detail about the negative responses he received from the society. So, Valmiki is criticized by Daya Pawar here as a poet. वाल्मीकि को ग्रेट पोएट कहा उन्होंने, लेकिन ये क्वेश्चन भी किया कि आप क्यों महान हो। क्या आप इसलिए महान हो कि आपने राम राज्य के गुण गाए, गुणगान किया और अपने ही लोगों की व्यथा गाथा नहीं की? क्या इसलिए आपको बड़ा पोएट माना जाए? बड़ा पोएट है कौन? ये प्रश्न भी उन्होंने इस कविता के ज़रिए उठाया कि वो जो विचार अच्छे रखता है या जटिल बातें करता है या बड़े हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स का गुणगान करता है, वो महान कवि है, या कवि महान वो है जो कविता को एक माध्यम बनाता है समाज के सरोकारों का भान देने के लिए, आम जनता में, पाठकों में वो अवेयरनेस लाने के लिए कि क्या चल रहा है और क्या गलत है, क्या सही होना चाहिए और कैसे किसका प्रतिकार करना चाहिए। तो जो कविता को माध्यम बना के, एक औजार बना के, एक मीडियम बना के परेशानियां उजागर करता है, वो महान है, या केवल उसका विचार ही, या जो प्रकृति की सुंदरता की बात करे या किसी राजा के गुणों का गान करे, वो महान है। तो ये प्रश्न बहुत एक बड़ा प्रश्न उठा दिया है दया पवार ने इस कविता के ज़रिए। अब हम इस कविता को पूरा पढ़ेंगे। आई विल अटेम्प्ट टू रीड दिस पोएम इन वन गो, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ट्राई एंड enjoy the beauty of it, and then I will try and explain it word to word to you. O Valmiki, should you sing the praises of Ramraj because you are the great poet of poets? Seeing the heron's wounded wing, your compassionate heart broke out in lament. You were born outside the village in a shunned neighborhood where misery itself was born. Never festooned with fruit or flower, the dejected faces furrowed with care, is it true you never heard their lament as they cried for liberation? One Shambuk of your own blood caught fire, rose in anger? O great poet, singing the praises of Ram Rajya, even there the icy cliff of inhumanity towered up. O great poet, how then should we call you a great poet? Had you written just one single verse exposing this injustice, this outrage, then would your name have been carved on our hearts. Now we see that the big question here is, what is the benchmark of greatness of a poet? This beautiful poem, written in Marathi, has been translated from Marathi by Graham Smith. Now, Valmiki wrote Ramayana and he glorified Ramraj in this poem. Now, Valmiki, being from the Dalit community, should actually be talking of the Dalits and their problems, but he is kind of not talking about that and glorifying Ramraj. He's glorifying a ruler. So that is the main question at heart here. So, O Valmiki, should you sing the praises of Ramraj because you're the great poet of poets? तो क्वेश्चन यहाँ पे उठाया जा रहा है, सवाल उठाया जा रहा है वाल्मीकि की ग्रेटनेस पे कि वाल्मीकि जी, क्या आपको गाना गाना चाहिए, गुणगान करना चाहिए राम राज्य का, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप कवियों के कवि हो, महान हो? क्या आपको इसीलिए महान मान लिया जाए कि आपने राजा के गुणगान किए? Seeing the heron's wounded wing, your compassionate heart broke out in lament. हेरन एक पक्षी है जो ट्रॉपिकल एरियाज़ में पानी के इर्द गिर्द पाया जाता है, और उसके घायल होने पर आपका दिल जो है वो
टूट भर सा गया, ब्रोक योर हार्ट ब्रोक आउट इन लैमेंट। आप इतने दुखी व्यथा बयान करते हैं राम राज्य में कि एक हेरन पक्षी जो है, पक्षी के घायल होने पर तो आपके दिल से संवेदना का ज्वार उमड़ पड़ता है। पर क्या आपको याद है कि आप कहाँ पैदा हुए थे? यू वर बॉर्न आउटसाइड द विलेज। आप गांव के बाहर पैदा हुए थे, इन अ शंड नेबरहुड वेयर मिजरी इट सेल्फ वॉज बॉर्न। शन यानी जिसका परित्याग कर रखा था, या जिसको मान्यता नहीं थी, जिसको घर देश से बाहर या गांव से बाहर निकाल दिया गया था। आप ऐसी कम्युनिटी में पैदा हुए, ऐसे नेबरहुड में पैदा हुए जिसको शन कर दिया था गांव वालों ने। वेयर मिजरी इट सेल्फ वॉज बॉर्न, जहाँ व्यथा ही जन्म लेती थी, यानी दुख शोक का ही जन्म जहाँ पर होता था। नेवर फेस्टून्ड विद फ्रूट और फ्लावर, कभी सजावट वहाँ पर नहीं हुई, कभी उसको डेकोरेट नहीं किया गया, फेस्टिव ओकेजन वहाँ नहीं आती थी, कोई सेलिब्रेशन वहाँ नहीं दिखता था, ना फल दिखते थे, ना फूल दिखते थे। द डिजेक्टेड फेसेस, जो लोग वहाँ पर रहते थे वो डिजेक्टेड फील करते थे, यानी समाज से बहिष्कृत से थे वो। फरोड विद केयर, यानी चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी हुई थी उनके चिंता के कारण, परेशानियों के कारण। फरो झुर्रियों के लिए ही यहाँ शब्द यूज़ हो रहा है। सो द डिजेक्टेड फेसेस फरोड विद केयर, परेशानी से भरे हुए चेहरे जो थे और हमेशा हताश निराश रहते थे, ऐसी जगह पैदा हुए थे आप। इज़ इट ट्रू यू नेवर हर्ड द लैमेंट एज दे क्राइड फॉर लिबरेशन? और क्या ये सत्य है, क्या ये सत्य है कि आपके कानों में कभी उनकी आवाज़ नहीं पड़ी जब वो चित्कार करते थे लिबरेशन के लिए, आज़ादी के लिए, समाज से के जो जंजीरों में इनको बांध रखा था, हीन भावना से जो बंधे पड़े थे ये उससे छुटकारा पाने के लिए जब चित्कार करते थे, क्या वो आवाज़ आपके कानों में कभी नहीं पड़ी? वन शंबुक ऑफ योर ओन ब्लड कॉट फायर रोज इन एंगर। और शंबुक का किस्सा ध्यान है आपको, जो आप ही के खून के थे, यानी आप ही की कम्युनिटी से थे। कॉट फायर रोज इन एंगर, आग लग गई जिनके, जो गुस्से में उभर के आए। तो शंबुक जो थे उनको कैसे, किस गुस्से का सामना करना पड़ा और क्यों वो जल गए? शंबुक की कहानी ये है कि वो निम्न कोटि के तो थे ही, उनकी जात जो मानी जाती थी वो निम्न मानी जाती थी, और उन्होंने वेद पढ़ने का प्रयास किया। और वेद पढ़ना उस समय गुनाह था, स्त्रियां भी नहीं पढ़ सकती थीं, सिर्फ पुरुष, और वो भी ब्राह्मण लोग ही वेद पढ़ सकते थे। तो ऐसे में एक नीची जाति का व्यक्ति अगर वेद पढ़ने का प्रयास करे तो उसका सर कलम कर दिया जाता था, यानी ये मृत्यु दंड का अपराध था। तो राजा राम ने ही सुना है, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शंबुक का सर कलम कर दिया था, सर तलवार से अलग कर दिया था, और वो यही कारण था कि वो गुस्से का शिकार हुए। कॉट फायर रोज इन एंगर। ओ ग्रेट पोएट सिंगिंग द प्रेजेस ऑफ राम राज्य। हे महान कवि, आप जो राम राज्य के गीत गा रहे हो, इवन देयर द आइसी क्लिफ ऑफ इनह्यूमैनिटी टावर्ड अप। आप राम राज्य भी देखें तो आप देखेंगे कि इनह्यूमैनिटी, अमानवीयता जो है, अमानवीय कृत जो हैं, कोई कम नहीं है राम के राज्य में भी। इवन देयर, राम के राज्य में भी आइसी क्लिफ, आइसी क्लिफ, क्लिफ कहते हैं हम बहुत ऊंचे चट्टान को, पर्वतनुमा चट्टान जो होती है अक्सर समुद्र के किनारे, जो जहाँ गहरा पानी एक तरफ दिखता है और ऊंची चट्टान नुकीली सी कहीं दिखती है, उसको हम क्लिफ भी कहते हैं अंग्रेज़ी में। तो आइसी, जिस पर बर्फ़ जमी हो, ऑफ इनह्यूमैनिटी, यानी एक बहुत ऊंची चट्टान है अमानवीय कृतों की। टावर्ड अप, टावर्ड अप, इसमें राम राज्य में भी अगर एक बहुत ढेर लगा है बड़ा अमानवीयता का, इनह्यूमैनिटी का, जिसमें मानवता को रौंदा गया है। तो रामायण में भी आप ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स पढ़ते हैं, देखते हैं, पूरी अगर रामायण आप पढ़ें तो
तो महान क्या हुआ उसमें? ओ ग्रेट पोएट, हाउ देन शुड वी कॉल यू अ ग्रेट पोएट? तो आपने वहाँ पर तो देखा और उसको जाने दिया, और अपनी कम्युनिटी की भी आपको परेशानियाँ नहीं दिखी, तो ऐसे में क्यों आपको ग्रेट मान लिया जाए? ओ ग्रेट पोएट, हाउ देन शुड वी कॉल यू ग्रेट पोएट? कैसे हम आपको महान माने? हैड यू रिटन योर जस्ट वन सिंगल वर्ड्स? यदि आपने एक छोटी सी कविता ही क्यों ना सही अपने लोगों के परेशानी के बारे में लिखी होती, एक्सपोजिंग दिस इनजस्टिस, दिस आउटरीच, अगर एक्सपोज किया होता आपने कि कितना अन्याय सह रही है आपकी कम्युनिटी और कितना रोष है उनमें, देन वुड योर नेम हैव बीन कार्व्ड ऑन आवर हार्ट्स, तो आपका नाम जो है हम अपने दिलों पर उकेर लेते, यानी आप हमारे दिलों में रहते बसते। तो दलित कम्युनिटी के होने से दया पवार बहुत ज़्यादा व्यथित महसूस करते हैं कि कैसे वाल्मीकि ग्रेट हुए, जब उन्होंने खुद अपने समाज की परेशानियों को अनदेखा करके राम राज्य के गुण किए, राम राज्य के सिर्फ गुणगान ही किए, और राम राज्य में होने वाली अमानवीय घटनाओं का भी जिक्र करके, लेकिन उनके बारे में वो फिर भी राम की तारीफ़ ही कर रहे हैं, राम राज्य की प्रशंसा ही कर रहे हैं, कोई भी अमानवीय कृत्य के लिए खड़े नहीं दिखाई देते हैं, अपनी कम्युनिटी का भी साथ वो नहीं देते हैं, तो उन्हें महान क्यों मान लिया जाए? महान अगर उनको मानना था तो अगर वो अपने कम्युनिटी के लिए उनके साथ खड़े होते, या उन पर अन्याय जो हो रहा है या जो आउटरेज वो महसूस करते हैं उसका अगर वो एक छोटी सी कविता में जिक्र भी करते, तो वो इस कम्युनिटी के दिलों में बसते, उनका नाम जो है उनके दिलों पे उकेरा जाता। ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे कवि दया पवार। ट्रांसलेशन ग्राहम स्मिथ ने किया है इसको मराठी से अंग्रेज़ी में। I hope you have been able to understand it better with my explanation. We will continue in the next video with the questions for discussion.